جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ تو پہنچا دے، وہ احکامات جو انزلہ اتارے گئے الیکا تیری طرف، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہیں پہنچایا تو نے ایک حکم بھی، فما بلغتا پھر گویا کہ نہیں پہنچایا تو نے رسالتہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات کو، واللہ یعصمک اور اللہ تعالیٰ بچا لے گا تجھے، من الناسی یہود و نصارہ اور عیسائی کفار مکہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الکافرین کافر قوم کو۔ قل تو کہہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لستم علی شیئن نہیں ہو تم کسی صحیح مذہب پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ تم قائم کرو تورات، والانجیل اور انجیل، وما اور وہ قرآن مجید جو انزل الیکم اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور البتہ ضرور بھی ضرور زیادہ کرے گا قرآن مجید۔ قرآن مجید ابھی یہاں نہیں بولنا، آگے جا کے بولیں گے۔ اور البتہ ضرور بھی ضرور زیادہ کرے گا، کثیرا منہم یہود و نصارہ میں سے زیادہ کو، ما وہ قرآن مجید جو انزل الیکا اتارا گیا تیری طرف، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، و کفرن اور کفر میں، یہ آیت پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے کل بھی۔ فلا تأسا پھر نہ تو افسوس کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو اور جو یہودی ہیں، والصابئون اور جو بے دین ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، من آمنا جو بھی ایمان لائے گا، باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کی حاضری پر، وعمل صالحا اور کرے گا نیک عمل، فلا خوف علیہم پھر نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا البتہ تحقیق لیا ہم نے، میثاق بنی اسرائیل پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف رسولاً کئی رسول، کلما جب کبھی جاءہم لاتا ان کے پاس رسول کوئی رسول، بما وہ مسئلہ توحید جو لا تہوا نہیں پسند کیا، انفسہم ان کے دلوں نے، فریقاً رسولوں کی ایک جماعت کو، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، وفریقاً اور رسولوں کی ایک جماعت کو، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، وحاسبوا اور خیال کرتے تھے، اللہ تکون فتنۃ یہ کہ نہیں ہوگی کوئی آزمائش، فعموا پھر وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر رخ رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر، پھر توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی انبیاء کو بھیج کر، ثم عموا پھر وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے زیادہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، بما یعملون ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے، وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ وقال المسیح اور کہا مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم تم عبادت کرو اللہ تعالی میرے رب اور اپنے رب کی، اس طرح بھی بول سکتے ہیں تم عبادت کرو میرے رب اور اپنے رب اللہ تعالی کی، انہو بے شک حقیقت یہ ہے، من یشرک جو شخص شریک ٹھہرائے گا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو شخص شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ پھر تحقیق حرام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے علیہ اس مشرک پر، الجنت جنت،
वमाअहुन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीना, और नहीं है जालिमों का मिन अंसार, कोई मददगार। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता तहकीक काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, बेशक अल्लाह ताला तीन में से तीसरा है। वमा मिन इलाहिन, हालांकि नहीं कोई माबूद, इल्ला इलाहुन वाहिद, मगर अ, अकेला माबूद है। व इल्लम यंतहु, और अगर ना बाज आए ईसाई, अम्मा उन बातों से जो यकूलूना वो कहते हैं, ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफरू, अलबत्ता जरूर बेजरूर छुएगा काफिरों को, पहुंचेगा काफिरों को, मिनहुम उनमें से, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। अफला यतूबून इलल्लाह, फिर क्यों नहीं वो ईसाई तौबा करते अल्लाह ताला के हुजूर, व यस्तगफिरूनहु, और क्यों नहीं बख्शिश मांगते अल्लाह ताला से, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। बेशक मल मसीह इब्नु मरियम, नहीं है मसीह इब्ने मरियम माबूद, इल्ला रसूल, मगर रसूल हैं। कद खलत मिन कबलिही रसूल, तहकीक गुजर चुके मसीह से पहले भी कई रसूल। व उम्मुहु सिद्दीका, और मसीह की वालिदा सिद्दीका हैं। काना याकुलानि तआम, थे वो दोनों, यानी ईसा और उनकी वालिदा थे वो दोनों खाना खाते, याकुलानी खाते, अत्तआमा खाना। उन्जुर, तो देख, कैफ़ नुबय्यिनु, कैसे हम बयान फरमाते हैं, लहुम उनके लिए, अल आयाती निशानियां, सुम मंजूर, फिर तो देख, अन्ना युफकून, कहाँ से वो फेर दिए जाते हैं। कुल, तू कह, अताबुदून अल्लाह, तू पूछ है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अताबुदून मिन दूनिल्लाहि, क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह ताला के अलावा, माँ उन माबूदों की जो ला यमलिकु लकुम, नहीं वो मालिक तुम्हारे लिए, जर्रन नुकसान के, वला नफ़अन, और ना नफा के, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ताला वही सुनने वाला, इल्म वाला है। कुल, तू कह ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तगलू, मत तुम मुबालगा करो, मत तुम कमी बेशी करो, फी दीनिकुम, अपने दीन में, गैर अल हक की, ना हक, वला तत्तबिउ, और ना तुम पैरवी करो, अहवा कौमिन, उस कौम की ख्वाहिशात की, यानी यहूदी कौम की ख्वाहिशात की, कद जल्लू, तहकीक वो भटक गए, व मिन कबलू, तुमसे पहले, व अजल्लू कसीरन, और गुमराह किया उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को, वजल्लू, और वो भटक गए, अनसवा इस सबील, सीधी राह से, सिराते मुस्तकीम से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत का दूसरा हिस्सा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जी कुछ अहकामात दे रहे हैं। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी अहकामात आपको मिलते हैं आप सब के सब लोगों तक पहुंचा दें। अहकामात उस दौर के हिसाब से बहुत सख्त थे, क्योंकि वहाँ एक तो शिर्क था आम, और शिर्क के खिलाफ मुशरिक के पास बैठ के बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, खास तौर पे जब आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मैं उनके माबूदों को बुरा कह रहा हूँ, उनके माबूदों की तौहीन हो रही है। माबूदों की तौहीन इस तरह कि आप चाहे अच्छे भी अल्फाज इस्तेमाल करें, जब आप उनको ये कहेंगे ये माबूद कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये उनके माबूदों की तौहीन ही होती है। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे अहकामात थे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लेपालक बेटे की बीवी से निकाह फरमाया, और ये कानून तोड़ा, उसूल तोड़ा कि लेपालक की बीवी जो होती है वो बहू नहीं होती, वो गैर महरम होती है। तो इस तरह के बहुत सारे उसूल आपने तोड़े, और बड़ा मुश्किल काम था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपने एक भी हुक्म नहीं पहुंचाया तो गोया कि आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया, इसलिए तमाम अहकामात आपको पहुंचाने होंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और जहां तक लोगों की बात है तो अल्लाह ताला आपको इनसे बचा लेंगे। और ये आज भी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, चूंकि कुरान मजीद रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए है, तो इसलिए आज भी जो भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान खोलता है तो अल्लाह ताला उसको खुद ही उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं।
تو اللہ ताला ने उस दौर में भी ईसाइयों से, यहूदियों से और कुफार मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा के रखा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, क्योंकि अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता। जब भी कोई चाल चलने की कोशिश करता, अल्लाह ताला उसका राज फाश कर देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता देते कि आप को फलां की तरफ से खतरा है, आप उस तरफ ना जाइए, आप उस तरफ से हट जाइए। तो इस तरह अल्लाह ताला आपको बचाते रहे। कुल या अहलल किताबी लस्तुम अला शैइन, फिर खिताब फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ईसाइयों और यहूदियों को खिताब फरमाइए और उनको कहिए सीधे अल्फाज में। हमारे यहाँ तो बड़ी जो है वो सियासत से काम लिए जाते हैं, बड़े हमें बताया जाता है कि आप बिल्कुल जो है एकदम से ना कहा करें, कुछ भी किसी की नफी ना किया करें, सियासत से चलें। लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है कि सीधा 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 चलें बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कहो कि तुम किसी सही मजहब पर नहीं हो, ठीक है। हम हो ना तो हम बिल्कुल थोड़ा सा लपेट के बात को करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको कहो, ए यहूदियों और ईसाइयों, तुम सही मजहब पर नहीं हो। उस वक्त तक सही मजहब पर नहीं, यहाँ तक कि तुम तौरात और इंजील के अहकामात को कायम करो। जब तुम उसके मुताबिक अमल करोगे तो फिर तुम सही मजहब पर होगे। सही ईसाई भी तभी होगे, सही यहूदी भी तभी बनोगे जब अपनी किताबों पे अमल करोगे। वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और जो कुरान तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है, उस वक्त तक तुम सही मजहब पर नहीं, जब तक इस पर ईमान नहीं लाते। वला यजीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनजिला इलैका मिर रब्बिका तुगयाना व कुफ्रा, और ये कुरान ऐसी किताब है कि ईमान वालों का ईमान बढ़ा देती है और काफिरों का कुफर और सरकशी बढ़ा देती है। क्योंकि जब काफिर अ, अपने माबूदों के खिलाफ, अपने मजहब के खिलाफ इसमें से कुछ सुनते हैं तो आग बगोला हो जाते हैं, एकदम से जोश में आ जाते हैं और उनका कुफर और सरकशी और बढ़ जाती है। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये कुरान जो तेरी तरफ नाजिल किया गया है उनकी सरकशी और कुफर को और बढ़ा देगा। और ऐसा ही हुआ। फिर वो जब आयात सुनते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला आवर हो जाते, कभी आपके खिलाफ खुफिया चालें चलते, कभी आपके खिलाफ जंग के इरादे करते, लश्कर लेकर आपके ऊपर हमलावर हो जाते। वो सब कुछ क्यों था? आपकी जात से तो उनको कोई इशू नहीं था, ये कुरान ही था जो उनको जोश दिलाता था। फला तअसल कौमिल काफिरीन, लिहाजा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिर कौम पर अफसोस न कर। आप रहमतुल लिल आलमीन थे ना, आपको काफिरों पे भी अफसोस होता था। आप फरमाते थे कि इनका क्या बनेगा, ये जहन्नुम में जलेंगे, क्या बनेगा इनका, इनको पहचान नहीं है कि ये किसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो आप उनके लिए भी आपके दिल में दर्द था, अपने दुश्मन के लिए भी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन पर अफसोस ना कर, उनके अंदर ही ये कुछ है, वो अंदर से हैं ही ऐसे, वो किसी बात से जो है राह रास्त पे नहीं आने वाले। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन। अ, फिर सुभान अल्लाह, ये कल ही आयत जो है मैंने सुनी तर्जुमे के साथ और आज मेरे सामने आ गई। कुरान तस्दीक करता है अपनी। आपने भी नोट किया होगा कि एक जगह आप एक आयत सुनते हैं, आप जब दूसरी जगह से खोलते हैं कहीं से कुरान, या आप तिलावत सुनते हैं या किसी और क्लास में जाते हैं, तो वहां पे भी वही आयत चल रही होती है। तो ये कुरान अपनी खुद तस्दीक करता है कि मैं सच्चा हूँ। क्यों ऐसा होता है कि सेम वही आयत आपके बार बार सामने आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि आपने पढ़ी तो आपको फिर उस दिन या कुछ दिन वैसी आयत सामने नहीं आई? ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक जगह से सुनेंगे तो दूसरी जगह से भी वो आपको सुनाई देगी। तो ये सच्चाई की अलामत है इसकी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए हैं और जो लोग यहूदी हैं और जो बेदीन हैं, यानी लिबरल हैं, जो बेदीन का मतलब लिबरल, और जो ईसाई हैं, उनमें से जो भी ईमान लाएगा, मन आम इन्नल्लज़ीना आमनू में जो है मुनाफिक भी इससे मुराद हो सकते हैं, क्योंकि मुनाफिकों ने भी ईमान का लिबास पहना होता था, मोमिन बन के बैठे होते थे, हकीकत में ईमान नहीं होता था उनके अंदर। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इस्लाम ईसाई मजहब की तरह नहीं है, ना ही यहूदी मजहब की तरह है कि उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता।
یا یہ مخصوص کسی ایک ہی قوم کے لیے ہے، بلکہ یہودیوں میں بھی اور لبرل لوگوں میں بھی اور ایمان والوں میں بھی اور عیسائیوں میں سے بھی جو بھی ایمان لے آئے گا، جو بھی قرآن پر من آمن باللہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا، والیوم الاخر قیامت کے دن کی حاضری پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ نیک عمل بھی کرے گا، یعنی سنت کے مطابق چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی وسعت ہے، اسلام کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اتنا اس کے اندر جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، جتنا بھی بڑا کوئی دشمن ہو اس کو بھی، وہ بھی جب اس میں داخل ہوگا تو وہ بھی دوست بن جائے گا اور وہ بھی مسلمانوں کا بھائی اور بہن بن جائیں گے۔ تو اتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر وسعت ہے، جیسے ہم نے پیچھے بتایا تھا نا، یہ یہودی مذہب کے اندر کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا، وہ نسل پرست قوم ہے، ان کی نسل کے علاوہ کوئی اور یہودیت میں داخل ہونا چاہے تو اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن باقی مذاہب میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی آنا چاہے آئے، بلکہ کھلے عام دعوت دیتا ہے کہ آ کے مجھے سمجھو اور مجھے قبول کرو۔ لقد اخذ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل، یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کئی رسول بھیجے اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا توحید پر قائم رہنے کا، لیکن ان کی حالت یہ تھی، بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے نا یہودی مراد ہیں اس سے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس ان کا کوئی رسول اس مسئلہ توحید کو لے کر آتا جو ان کے دلوں کو پسند نہیں آتا تھا، فریقاً کذبوا، رسولوں کی ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا، و فریقاً یقتلون، اور رسولوں کی ایک جماعت کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی دشمنی اس حد تک بڑھ جاتی کہ ان کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والا مسئلہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، توحید والا مسئلہ پسند نہیں آتا تھا، تو وہ رسولوں پر حملہ آور ہو جاتے، رسولوں کو جھٹلاتے، جھٹلانا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن پھر کچھ رسولوں کو انہوں نے شہید بھی کر دیا، اور کئی رسولوں کو انہوں نے شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے ان کا تذکرہ۔ تو ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اس کے علاوہ لاکھوں انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، ایک نبی کے خون کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گر جائے تو وہ زمین جو ہے اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے غنڈوں نے پتھر مارے تو آپ اپنا خون جو تھا زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، آپ اپنا خون جسم کے اوپر سے صاف کرتے تھے، اگر آپ کا خون زمین پہ گر جاتا تو عذاب آ جاتا اس کے اوپر، آپ کا خون مبارک جوتوں کے اندر جم گیا تھا، لیکن اس کو آپ کو بہنے کا تذکرہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ بہتا رہا آپ کا خون۔ بہرحال یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ویسے ہی علماء نے ایک تجزیہ کیا ہے کہ اگر خون نبی کا زمین پہ گر جائے تو وہاں پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، ویسے تو وہاں پہ بھی غزوہ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے نا، تو وہاں پہ بھی تو خون گرا ہوگا، یقینی بات ہے، اور وہاں پہ بھی جنگ بھی کوئی امن تو نہیں ہوتا نا، وہ بھی ایک مشکل ہی ہوتی ہے، مصیبت ہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کتنے انبیاء کو شہید کیا، کتنے انبیاء کا خون بہایا، زمین کو پلایا انہوں نے خون، تو کیا حالات پھر بننے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہی، جیسے ان کو پتھر دل بنا دیا گیا ہے، یہی ان کا مقدر تھا کہ اتنی سختی، اتنی شقاوت کے نبی جو ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو شہید کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کلما جاءہم رسول فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ، وہی بات آگے آ گئی ہے کہ انہوں نے خیال کیا کہ ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، یعنی ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی پکڑ ہماری اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، فعموا وصموا، پھر وہ بہرے اور گونگے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رخ رحمت فرمایا اور ان کی طرف انبیاء کو بھیجا۔ اب بہرے اور گونگے ایسا نہیں کہ
जिस्म उनका ऐसा हो गया कि बोल नहीं सकते थे या सुन नहीं सकते थे, बल्कि अपने सही दीन को सुन नहीं सकते थे, सही बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और सच सच को बोलने से महरूम हो गए, सच को सुनने से महरूम हो गए। सच उनके दिलों में नहीं उतरता था, उनको समझ नहीं आती थी कि क्या बोला जा रहा है। हमारे भी जब ऐसी हालत होती है ना, कोई गुनाह किया हो या कोई इंसान से गलती हुई हो, इस्तिगफार की जब कमी होती है, तो उस वक्त ये कुरान हमारे हमें सुनाई नहीं दे रहा होता, हमें शाय शाय हो रहा होता है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या बोला जा रहा है, उनके ऐसे ना आवाजें आ रही होती हैं, बस जैसे कोई गैर जुबान बोल रहा होता है। जैसे ऐसी जुबान बोली जा रही जिसके को आप पहचानते ही नहीं है। तो इस तरह की शायें शायें कई लोगों के कानों में हो रही होती है, और गफलत में, उनके ज़हन गफलत में डूबे हुए होते हैं उस टाइम की क्या बोला जा रहा है। तो ये हालत इंसान की जो है इस्तिगफार तलब करती है कि इस्तिगफार करना चाहिए। तो यही इनका हाल था जब अंबिया के साथ इन्होंने ये मामले किए, तो अल्लाह ताला ने इनको बहरा और गूंगा कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला को तरस आ जाता, रहम आ जाता, और अल्लाह ताला फिर अंबिया को भेजते। सुम्मा आमू व सम्मू कसीरुम मिनहुम, फिर उनमें से ज्यादातर लोग अब बहरे और गूंगे हो जाते। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला देख रहा है उन अमाल को जो वो करते हैं। अल्लाह का देखना इंसान काफी नहीं समझता। कैमरे का देखना काफी समझता है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जहाँ पे पता हो कि अल्लाह देख रहा है, वहां सब कुछ कर लेता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। फिर अल्लाह ताला ने वही बात, पीछे भी हमने ये कई बार पढ़ी है, यहाँ पे भी 2 बार आएगा। ईसाइयों के अकीदे को अल्लाह ताला ने कुफर करार दिया है कि वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, के मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। इनके 2 फिरके हैं ना, बल्कि 2 से भी ज्यादा हैं। 2 का तज़किरा यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि एक फिरका कहता है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। तो जिन्होंने ऐसे कहा कि मसीह इब्ने मरियम ईसा को अल्लाह कहा, वो काफिर हैं। वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल, जबकि मसीह ने तो ये कहा था कि ए औलाद याकूब उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अपने रब और मेरे रब अल्लाह की इबादत करो। यानी ईसा का तो पैगाम ये था, ईसा ने ये तो नहीं कहा था कि मुझे पूजो या मेरी माँ को पूजो। ईसा ने तो कहा था कि जो मेरा रब है और जो तुम्हारा रब है, यानी अल्लाह ताला, उसकी इबादत करो। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा, शिर्क करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह उस मुशरिक पर जन्नत हराम कर देगा। अल्लाहु अकबर। वमावाहुन्नार, और उसका ठिकाना आग है। अब हम कहते हैं कि कलमा तो पड़ा हुआ है, कलमा पढ़ के शिर्क कर रहा है, तो मुशरिक का क्या, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जन्नत उस पे हराम हो जाती है। हराम होने का क्या मतलब होता है कि उसकी खुशबू भी नहीं पा सकता। तो जो अल्लाह के अलावा किसी भी जिन बशर से या पहाड़ से या दरख्त से या फरिश्ते से या किसी भी मखलूक से, सूरज चांद सितारे से, आजकल तो लोग ट्रैक्टर से भी जो है अपनी हाजतें मांगते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर भी हाथ डाले हुए मैंने देखे एक दिन। और जो चीज जरा सी कोई उनको अजीब लगती है, उसको अपना माबूद बना लेते हैं और उसके आगे झुकना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उसके ऊपर हम ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर देते हैं, और उसका ठिकाना जहन्नम है। चाहे आप जुबान से कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सजदे कब्रों पे कर रहे होते हैं, और पीरों के पाँव चाट रहे होते हैं, और मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो, और खौफ इतना ज्यादा होता है। एक चीज सब में कॉमन होती है कि इनमें अल्लाह से ज्यादा अपने उन गैरुल्लाह का खौफ होता है। इससे हवाइयां उड़ रही होती हैं उनके चेहरों के ऊपर। जब आप नोट करें ना कि क्या उनकी कुछ अल्लाह की तरफ से नाउजुबिल्ला फटकार होती है कि मुझे छोड़ के आ, किसी और से मांग रहे हैं, किसी और को मेरे बराबर बना रहे हैं। देखिए ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला वो जात जो इतनी बड़ी जात है कि ये हमारी जो पूरी दुनिया है वो उसके अर्श के नीचे एक नुक्ते की भी हैसियत नहीं रखती। हमने
क्लास जब पहली ली थी तो उसमें एक वीडियो देखी थी कायनात का, वो हमने पूरा वो देखा था, मुशाहिदा किया था। उसमें आपने देखा होगा कि हमारी जमीन तो नजर ही नहीं आती कि जमीन कहाँ गई, तो फिर हम कहाँ से नजर आते होंगे। तो उसके अंदर ही बैठा हुआ हमारे जैसे ही एक शख्स, उसको पकड़ के हम अल्लाह बना दें या अल्लाह के बराबर बिठा दें और ये कहें कि जो कुछ अल्लाह कर सकता है वो हमारा ये पीर भी कर सकता है, या फलां कब्र भी कर सकती है, या कोई भी जिसको भी हमने बनाया वो कर सकता है अल्लाह के बराबर काम। तो क्या अल्लाह को गैरत नहीं आती? क्या उसको गुस्सा नहीं आता इस बात पे कि मैं इतनी बड़ी कायनात का रब और ऐसी हजारों दुनियाएं मैंने बनाई हुई हैं, मुझे एक ऐसे आम से बंदे जैसा बना रहे हैं, या इस बंदे को मेरे साथ बिठा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई चौधरी अपने साथ किसी कम जात वाले को नहीं बैठने देता और उसको गैरत का मामला समझ लेता है, ये तो बात ही बहुत ऊंची है। तो शिर्क जो है ना बहुत बड़ा जुर्म है, और सही अल्लाह ने फरमाया है कि ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। मुशरिक को अल्लाह कभी नहीं माफ करेंगे अगर वो शिर्क की हालत में मर गया। हाँ, दुनिया में तौबा कर ली, अल्लाह की रहमत आ गई तो अल्लाह ताला बख्श देंगे, लेकिन आगे चला गया इस हालत में तो फिर कभी नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मुझे सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब कोई शिर्क की हालत में चला जाता है, मुशरिक जब कोई मर जाता है तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि मोमिन की तो आगे आसानियां हैं और जन्नत है, लेकिन मुशरिक अगर कोई चला गया तो फिर कोई ठिकाना नहीं, कोई निजात नहीं। वमाल ज़ालिमीन मिन अंसार, यही अल्लाह भी फरमा रहे हैं कि जालिमों का कोई मददगार, मुशरिकों का कोई मददगार नहीं होगा। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, फिर इनके दूसरे फरीक की का तज़किरा फरमाया कि उन्होंने भी कुफर किया, वो भी काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से तीसरा है, यानी अल्लाह, ईसा, जिब्राइल, या अल्लाह, ईसा, मरियम, ये तीन लोग में तीन जातें मिलके एक एक रब बन जाते हैं, एक माबूद बन जाता है। इन्होंने इस तरह तौहीद बनाई। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, हालांकि अकेला माबूद अल्लाह ताला है। व इल्लम यंतहु अम्मा यकूलून, और अगर ईसाई अपने इस शिर्क से बाज ना आए, ला यमस्सन्न अल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनमें से काफिरों को जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरून, फिर बड़े मोहब्बत से अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तौबा क्यों नहीं कर लेते अल्लाह के सामने और उससे बख्शिश क्यों नहीं मांग लेते। वल्लाहु गफूरुर रहीम, जबकि अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। फिर नफी फरमाई, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्ने मरियम माबूद नहीं है, सिर्फ रसूल हैं। कद खलत मिन कब्लिही रसूल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी वालिदा सिद्दीका थी, सच्ची थी और सच की तस्दीक करने वाली थी। काना याकुलानि तआम, दोनों खाना खाते थे। क्या माबूद खाना खाता है? क्या माबूद किसी चीज का मोहताज होता है? दोनों सोते भी थे, खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे, बाजारों में चलते फिरते भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उनका कुंबा था, खानदान था। तो क्या माबूद ऐसा होता है? माबूद किसी का मोहताज होता है? माबूद तो वो है जो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माबूद तो ऐसा होता है जिसका कोई खानदान ना हो, जिसका कोई ननियाल ददियाल ना हो। मबूद तो ऐसा होना चाहिए ताकि वो किसी की हमायत ना करे, किसी की तरफ झुक ना जाए और दूसरे के साथ ज्यादती ना कर बैठे। तो ये कैसा माबूद है? ये एक रसूल है, माबूद नहीं है। उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा अंजुर अन्ना युफकून, तो देख हम कैसे इनके लिए खोल खोल कर दलाइल देते हैं, लेकिन फिर ये कहीं से उलट जाते हैं, इनकी समझ नहीं आती इनको। कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ, इनसे पूछ, क्या तू ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए क्या तुम उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें नफा या नुकसान का कोई तुम्हारे लिए इख्तियार ही नहीं रखते, ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान से बचा सकते हैं। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, जबकि अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और इल्म वाला भी है। माबूद तो ऐसा होना चाहिए। कुल या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, फिर फरमाया कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमाइए अहले किताब, अपने दीन में मुबालगा ना करो, मतलब कमी और ज्यादती ना करो। मुबालगा का मतलब बढ़ाना होता है, मुबालगा आराई ना करो।